ویلکم بیک۔ مقبول یا غیر مقبول لیڈر کسی وجہ سے جیل میں ہے، انہیں نون لیگ، پی ٹی آئی یا جے یو آئی نے جیل میں نہیں ڈالا۔ 9 مئی کو باقاعدہ فسادات تو ہوئے تھے، قانون کا سامنا تو کرنا پڑے گا۔ نگراں وزیر اعظم انوار اللہ کاکڑ کا غلام اسحاق خان یونیورسٹی میں طلبہ سے خطاب۔ انوار اللہ کاکڑ نے کہا، آپ ان مقبول لیڈرز کو ووٹ دینا چاہتے ہیں تو حق ہے، کوئی اس حق کو چیلنج یا تبدیل کرنا نہیں چاہتا۔ نگراں وزیر اعظم کا جو میجر کام ہے وہ ریفارمز لانا نہیں ہے، بلکہ کوشش کرنا ہے کہ فری اینڈ فیئر الیکشنز ہوں۔ ایک پاپولر لیڈر جیل میں ہے، فری اینڈ فیئر الیکشنز کی ہمیں کوئی امید نظر آتی نہیں ہے۔ ایک پاپولر لیڈر یا ان پاپولر لیڈر یا سیمی پاپولر لیڈر اگر وہ جیل میں ہے، رولز اینڈ ریگولیشنز کی وائلیشن کے تحت سرٹن ایف آئی آرز درج ہوئی، پی ایم ایل این نے ان کو جیل میں نہیں ڈالا، پیپلز پارٹی نے نہیں ڈالا، جمعیت علماء اسلام نے نہیں ڈالا۔ 9 مئی کو رائٹس ہوئی ہیں، یہ اسٹیبلش چیز ہے، ایسے کوئی کرے گا قانونی نتائج کا سامنا کرنا۔ آپ ان پاپولر لیڈر کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، یو شوڈ ووٹ فار اٹ، یور ایبسولوٹ رائٹ۔ کوئی آپ کے اس رائٹ کو نہ چیلنج کرنا چاہتا ہے نہ اس کو آلٹر کرنا چاہتا ہے۔ بانی پی ٹی آئی 3 حلقوں سے الیکشن لڑیں گے، چیئرمین تحریک انصاف بیرسٹر گوہر علی خان کا اعلان۔ کہتے ہیں بانی پی ٹی آئی میاں والی، لاہور اور اسلام آباد سے انتخابات لڑیں گے۔ علی ظفر نے کہا، پارٹی ٹکٹ کے لیے ترجیح جیل میں موجود کارکنوں کو دی جائے گی۔ سردار لطیف کھوسہ بولے، کسی کو گرفتار کیا تو جیل سے الیکشن لڑے گا۔ نامینیشن فارم آ جائیں گے، خان صاحب سائن کر دے گا عدالت کے حکم کے مطابق۔ میاں سے بھی لڑیں گے، لاہور سے بھی لڑیں گے، اسلام آباد سے بھی لڑیں گے۔ ورکر کو بھی ڈائریکشن دے دی گئی ہے، اپنے اپنے نامینیشن پیپرز فائل کر دیں۔ پرائیورٹی دی جائے گی ان کو جو جیل میں ہے۔ ہم پوری طرح تیار ہیں، عدالتی طور پر بھی دفاع کریں گے، اگر کسی کو گرفتار کر لیں گے جیل سے بھی وہ لڑیں گے۔ کیپٹن ریٹائرڈ صفدر نے اہلیہ کے وزیر اعلیٰ پنجاب بننے کا اعلان کر دیا۔ کہتے ہیں مانسہرہ کی بہو وزیر اعلیٰ پنجاب بنیں گی۔ مریم نواز پنجاب سے قومی اور صوبائی دونوں نشستوں پر الیکشن لڑیں گی۔ نواز شریف صاحب خیبر پختونخوا سے قومی اسمبلی کا الیکشن لڑیں گے اور NA 15 سے لڑیں گے، جن کے لیے یہ راستہ اللہ نے ہموار کیا ہوا ہے۔ وزیر اعلیٰ امیر مقام ہوگا، پنجاب کی بھی وزیر اعلیٰ مانسہرہ کی بہو ہوگی، وہ دونوں سیٹوں سے لڑیں گی اور وہ وزیر اعلیٰ پنجاب ہوں گے۔ میں الیکشن نہیں کروں گا، میں لوگوں کی خدمت کروں گا۔ مسلم لیگ نون نے شہباز شریف اور مریم نواز کو کراچی سے انتخابی اکھاڑے میں اتارنے کا فیصلہ کر لیا۔ آصف زرداری نواب شاہ کی آبائی نشست سے ایوان میں جانے کے خواہش مند ہیں۔ کون کہاں سے میدان میں اترے گا، جانیے اس رپورٹ۔ ملک بھر میں انتخابات کی تیاریوں کو ٹاپ گیئر لگ گیا۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف کے لیے NA 15 مانسہرہ سے کاغذات نامزدگی حاصل کر لیے گئے۔ شہباز شریف لاہور میں قومی اسمبلی کے 1 اور صوبائی اسمبلی کے 2 حلقوں سے انتخاب لڑیں گے۔ شہباز شریف اور مریم نواز کے لیے NA 242 اور NA 237 کراچی سے بھی کاغذات نامزدگی وصول کیے گئے۔ MQM پاکستان کے رہنما مصطفیٰ کمال بھی NA 242 سے شہباز شریف کے مد مقابل ہوں گے۔ سابق صدر آصف زرداری NA 207 نواب شاہ سے اکھاڑے میں اتریں گے۔ استحکام پاکستان پارٹی کے جہانگیر ترین NA 155 لودھراں علیم خان NA 119 لاہور سے قسمت آزمائیں گے۔ شیخ رشید نے راولپنڈی کے حلقے NA 56 اور 57 کے لیے کاغذات نامزدگی حاصل کر دیے۔ سابق وزیر داخلہ چودھری نثار NA 53 پنڈی سے انتخابی دوڑ میں شامل ہوں گے۔ چودھری پرویز الہی گجرات، منڈی بہاؤدین اور تلا گنج سے قومی و صوبائی اسمبلی کی 3 نشستوں پر الیکشن لڑیں گے۔ خواجہ آصف سیالکوٹ کے NA 71 کے عوام کی نمائندگی کرنے کے خواہش مند ہیں۔ فردوس عاشق آوان کی قسمت کا فیصلہ NA 70 کے عوام سنائیں گے۔ امیدواروں کی ابتدائی فہرست ہفتے کو جاری کی جائے گی۔ 24 سے 30 دسمبر تک اسکروٹنی ہوگی۔ 13 جنوری کو انتخابی نشانات الاٹ کیے جائیں گے۔ MQM پاکستان اور JUI نے الیکشن کمیشن سے کاغذات نامزدگی جمع کرانے کا وقت بڑھانے کا مطالبہ کیا ہے۔ مسلم لیگ نون نے شہباز شریف اور مریم نواز کو کراچی سے انتخابی اکھاڑے میں اتارنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ آصف زرداری کی آبائی نشست سے ایوان میں جانے کے خواہش مند ہیں۔ کون کہاں سے میدان میں اترے گا، جانیں گے۔ الیکشن کمیشن نے انتخابی ضابطہ اخلاق جاری کر دیا۔ جماعتیں دستور میں عوامی حقوق کو سربلند رکھیں گی۔ امیدوار قانون نافذ کرنے والے اداروں سے مکمل تعاون کریں گے۔ ملکی خود مختاری، سالمیت، سلامتی کے خلاف کوئی اظہار نہیں کریں گے۔ عدلیہ افواج کی شہرت کو نقصان پہنچانے والا عمل نہ کریں۔
हिस्सा लेने या दस्तबरदार होने की तरगीब के लिए रिश्वत से गुरेज करें। उम्मीदवारों के इंतखाब में खवातीन की 5% नुमाइंदगी यकीनी बनाएं। जमातें मीडिया के खिलाफ हर किस्म के तशद्दुद से कारकुनों को रोकेंगी। जलसों, पोलिंग वाले दिन हथियार के इस्तेमाल और नुमाइश पर पाबंदी होगी। सियासी जमातें फिरका वाराना तकरीरों से इज्तनाब करें। यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। वेलकम बैक। ब्रेकिंग न्यूज आपको दें लाहौर से, जहां पर साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के घर के गैराज में धमाका हुआ है। गैराज में धमाके से घर की खिड़कियों के शीशे टूट गए हैं। नईम अशरफ भट्ट हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं, आगाह करेंगे। बताइए नईम। जी बिल्कुल, कुछ देर पहले साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के घर जो है वो धमाका हुआ है। तकरीबन कोई 9 बजने से कहने 5 मिनट पहले ये धमाके की आवाज सुनी गई। बड़ा शदीद धमाका था। अभी हमारे उनके जो बेटे हैं नजम, उनसे बात भी हुई है और उन्होंने कहा कि वो हम सब इवन साबिक चीफ जस्टिस भी घर में थे, हम अंदर मौजूद थे, तो बाहर जो गैराज में शदीद धमाके की आवाज आई और उसके बाद जो खिड़कियों के शीशे हैं वो भी टूट गए। फिर उन्होंने पुलिस को कॉल किया और फिर अब पुलिस वहां पहुंच गई है घर में। ये लाहौर में गार्डन रोड में उनका घर है पुराना, और कुछ अर्सा पहले तक इनकी सिक्योरिटी भी बाहर होती थी, रेंजर्स वगैरह, वो अब सिक्योरिटी वापस ले ली गई। फिर इनसे पूछा गया कि आपने कोई कैमरा, सीसीटीवी कैमरा लगवाए थे, उसमें शायद कोई नजर आया हो, किसी ने हो सकता है दस्ती बम हो या जो भी फेंका है। तो वो उन्होंने कहा कि कैमरे भी मैंने नहीं लगवाए थे क्योंकि सिक्योरिटी हर वक्त बाहर होती थी, अब वो नहीं है। तो अभी पुलिस पहुंच गई है, वो इसकी नौयत देख रहे हैं, कह रहे हैं कि थोड़ा सा गड़ा भी है उस बम के फटने से गैराज में। तो वो अब मजीद जो है वो पुलिस बताएगी। और एक और बात साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार ने और उनके फैमिली के लोगों ने बताया कि उन्हें कुछ धमकियां कुछ अर्सा पहले से मिल रही थी, खास तौर पर उनके बेटे के हवाले से, कि उनकी कोई उन्हें खतरात हैं और इस तरह की धमकियां 2 दफा डायरेक्टली उन तक पहुंची हैं साबिक चीफ जस्टिस तक कि उनके बेटे को जो है वो खतरा है। इस तरह की धमकियां उन्हें पहले मिल रही थी। लेकिन ये एक बड़ा वाकया है साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार, क्योंकि उनका ऊपर आजकल जो है पॉलिटिकली मियां साहब या और भी कुछ लोग जो हैं तनकीद भी करते हैं, बड़े दबंग चीफ जस्टिस रहे हैं और इस वक्त वो घर में मौजूद थे, उनकी फैमिली भी थी और तकरीबन 9 बजने से 5-10 मिनट पहले ये धमाका हुआ। पुलिस वहां पहुंच चुकी है उनके घर में, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, कोई जख्मी भी नहीं है, लेकिन इससे वो खौफ की फिजा जरूर है। जाहिर है घर है और मौजूद भी थे और ये एक क्लियर उन्हें मैसेज दिया गया होगा कि उनको कह लें कि जब ऐसे हो सकता है तो फिर बिल्कुल जो उन्हें धमकियां मिल रही हैं वो सीरियस नौयत की हैं। और ये भी अच्छा नईम, ये कहिएगा कि जिस वक्त ये धमाका हुआ उस वक्त साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार घर के अंदर ही मौजूद थे? जी अभी हमारी बात भी हुई है और वो लगता है कि वो घर में थे। उनको कुछ जल्दी थी क्योंकि पुलिस वहां पर मौजूद थी, लेकिन उनका बेटा जो है उन्होंने कंफर्म किया उनसे हमारी अच्छा, उनके बेटे ने क्या बताया है नईम? घर में थे वाले? जी उन्होंने कहा कि वो घर में ही थे जब एकदम शदीद आवाज आई धमाके की और वो थोड़ा डरे और घर की जो खिड़कियां थी उनके शीशे टूटे। और आमतौर पर उन्होंने कहा हमने पहले यही समझा कि कहीं करीब कहीं धमाका, आपको पता है कि लाहौर में कुछ साल पहले बहुत ज्यादा इस तरह के शदीद धमाके दहशतगर्दों के हमले होते थे, तो करीब घरों में ऐसे होता था, लेकिन उन्हें ये अंदाजा किसी को नहीं था कि हमारे घर में ही हमला हो गया। फिर जब उन्होंने देखा तो उनके गैराज में यानी घर के अंदर ही वो ब्लास्ट था और फिर उन्होंने फौरन पुलिस को कॉल किया, खुद बाहर वो फौरन नहीं गए। जाहिर है ये तो क्लियर एक कहने के हमला हो गया और फिर उन्होंने एहतियात की, पुलिस आई और फिर आकर उन्होंने देखा पुलिस इस वक्त उनके घर में मौजूद है। और फिर हमें ये उनकी फैमिली ने कंफर्म किया कि उन्हें थ्रेट्स इस तरह के 2 दफा क्लियर, खास तौर पर उनके बेटे जो है नजम, उनको आ चुके हैं इस तरह के थ्रेट्स के, उनको बचा लें, उनकी इस तरह की जो है जान के कह ले के खतरात के उन्हें थ्रेट्स दिए गए थे। और ये एक सीरियस नौयत का हमला है साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के लाहौर में जो उनका आबाई घर है और वहां पर हुआ है। और ये अभी पुलिस देख रही है कि वो किस तरह हुआ और हो सकता है। सही है, आप बता रहे हैं कि 9 बजने में कोई 5 से 10 मिनट थे जब ये गैराज में धमाका हुआ है और साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार अपने फैमिली के हमरा घर ही में मौजूद थे, उनके बेटे की जानिब से ये बताया गया है। नईम, आपका बहुत शुक्रिया।
रावलपिंडी में एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर की गाड़ी पर फायरिंग का मामला, पुलिस ने खबर की तरदीद कर दी। तर्जुमान पुलिस का कहना है जज मोहम्मद बशीर की गाड़ी पर फायरिंग होने की खबर दुरुस्त नहीं। पीएफ चौक पर शायान नामी लड़का अपने अजीजों को जबरदस्ती साथ ले जा रहा था। शायान के अजीज उसके साथ जाने से इनकारी थे, जिस पर मुलजिम ने हवाई फायरिंग कर दी। जज मोहम्मद बशीर अपने स्क्वाड के साथ फायरिंग होने से कबल जाए वक़्वा से गुजर चुके थे। थाना एयरपोर्ट पुलिस ने मुलजिम शायान को हिरासत में ले लिया है। कराची में खुले आसमान तले नशे का अड्डा बेनकाब। लियारी एक्सप्रेस वे के साथ पाक कॉलोनी का इलाका नशइयों की जन्नत बन गया। रोजाना मनशियात के आदी सैकड़ों अफराद इस नशई पार्क का रुख करते हैं और टोलियों की शक्ल में नशा करते हैं, कोई पूछने वाला नहीं। नजीर शाह की रिपोर्ट में देखिए। लियारी एक्सप्रेस वे पर शाद का एक अड्डा मेरे अकब में नजर आ रहा होगा। यहाँ सैकड़ों की तादाद से लोग नशा कर रहे हैं। कराची में नशइयों के गढ़ का इंकशाफ। लियारी एक्सप्रेस वे के नीचे रोजाना नशइयों के जत्थों के जत्थे पहुँचते हैं। दूर दूर तक चादरों तले टोलियां जमा होती हैं। इलाका नशई पार्क का मंजर पेश करता है। कार्रवाई की टीम ने कवरेज की कोशिश की तो एक शख्स डराने लगा, खबरदार किया ये अफराद सिर्फ नशई ही नहीं, असलहे समेत और भी बहुत कुछ है। अंदर जाऊंगा तो क्या होगा? गोली चलाएंगे। ऐसी बात है यार, चार मारेंगे और बहुत सारे चेहरे ऐसे हैं, इतना बड़ा चेन थोड़ी चल रहा है, पूरा गोली मार भरा हुआ, इसकी वजह से आपको फोन करा है। गोली मार और अतराफ से दर्जनों नशई हर रोज यहाँ जमा होते हैं। मीडिया टीम को देखा तो नशा करने में मगन अफराद भागने लगे। कराची पुलिस अब तक बेखबर है या जानते बूझते चुप साध रखी है। खबरें और भी हैं, लेकिन शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। कालादम बीएलए का कमांडर 70 साथियों के साथ कौमी धारे में शामिल। सरफराज मंगलजई ने कहा बलूचिस्तान में बेअमनी में भारत मुलविस है। मुसल्लह तंजीमें भारत से फंडिंग लेती हैं। भत्ताखोरी, मंशियात फरोशी, इगवा बराए तावान में मुलविस हैं। निगरान वज़ीर इत्तलात बलूचिस्तान जान अचकजई कहते हैं धरती के बेटे भारतीय अज़ाइम का पर्दा चाक होने पर बराह रास्त आ रहे हैं। मैं चंद लोगों के बिकावे में आकर अपने साथियों समेत मुसल्लह जद्दोजहद में शामिल हुआ। हमने समझा बलोच हुकूक के लिए जद्दोजहद कर रहा हूँ। तमाम तंजीमें भत्ताखोरी, मंशियात फरोशी, अगवा बराए तावान, बैरून ममालिक के फंड लेकर ऐश व अशरत की जिंदगी गुजार रहे थे। कौमियत और इस सरजमीन के लिए कोई जंग नहीं हो रही है। लोग जाती मुफादात के लिए मासूम बलोचों को मरवा रहे हैं। तमाम साजिशों में खासकर इंडिया का हाथ है। हमने इस तहरीक से अलहदगी का फैसला करते हुए कौमी धारे में शामिल होने का फैसला किया। हमारे पास बीएनए के कमांडर अपने तकरीबन 70 साथियों के साथ कौमी धारे में शामिल होने के लिए आए हैं। भारत बलूचिस्तान में हालात को खराब करने के लिए कोशिशें कर रहा है। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने सरफराज मंगलजई की कौमी धारे में शमूलियत को खुश आइंद पेशरफ्त करार दे दिया। ट्वीट में लिखा, गुलजार इमाम शंबे के बाद ये दूसरी बड़ी पेशरफ्त है। अमन और इस्तेहकाम हमारी अव्वलीन तरजीह है। हमारी रियासत और इदारे अस्करियत पसंदों को दोबारा मुत्तहिद करने के लिए फाल तौर पर काम कर रहे हैं। मैं कानून नाफिज करने वाले इदारों और इंटेलिजेंस एजेंसियों, खास तौर पर ISI की कोशिशों को सराहता हूं, जिन्होंने इस पेचीदा मंसूबे पर अमल दरामद किया और उसकी क़यादत की। सरफराज मंगलजई की कौमी धारे में शमूलियत, वज़ीर आज़म की इंटेलिजेंस एजेंसीज, खास तौर पर ISI की तारीफ। ट्वीट में लिखा, मैं कानून नाफिज करने वाले इदारों और इंटेलिजेंस एजेंसियों, खास तौर पर ISI की कोशिशों को सराहता हूं, जिन्होंने इस पेचीदा मंसूबे पर अमल दरामद किया और इसकी क़यादत की। वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। और खबर आपको दें कि अब से कुछ देर पहले साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के घर के गैराज में धमाका हुआ, जिस पर साकिब निसार का मौक़िफ़ सामने आया है। उनकी जानिब से बताया गया कि हम सब घर वाले खैरियत से हैं। घर के अंदर किसी ने कोई चीज फेंकी, धमाके से घर में गाड़ी तबाह हो गई। बाहर खड़े गार्ड और मुलाजमीन मामूली जख्मी हुए। अभी ये मालूम नहीं कि क्या चीज अंदर फेंकी गई। पुलिस तफ्तीश के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। अहमर खोकर इस वक्त उनके घर पर मौजूद हैं, उनसे तफसील जानते हैं। अहमर, बताइए। जी बिल्कुल, साबिक चीफ जस्टिस जुयान के घर के अंदर एक धमाका हुआ है और जो रेस्क्यू है उसके मुताबिक अभी तक कंफर्मेशन नहीं है कि ये किस चीज का ब्लास्ट है। रेस्क्यू का इब्तदाई तौर पे ये कहना है
کہ یہ ایک کریکر دھماکہ جو ہے وہ بتایا جا رہا ہے. اور ثاقب نثار جو ہیں ان کی بھی ایئر وے نیوز سے جب بات ہوئی تو ان کا کہنا تھا کہ گھر میں جو لوگ موجود ہیں وہ محفوظ ہیں. جو گاڑی گھر کے اندر کھڑی تھی وہ دھماکے سے متاثر ہوئی ہے اور ایک شخص جو ہے وہ کوئی چیز گھر کے اندر پھینک کے اس طرح فرار ہوا ہے جس سے گاڑی متاثر ہوئی ہے. اور گھر کے جو اندر لوگ تھے وہ محفوظ ہیں جبکہ ایک ملازم اور ایک وہاں پر جو سیکیورٹی پہ مامور تھا ایک اہلکار وہ زخمی ہوئے. 2 افراد کے جو زخمی ہونے کی اطلاعات ہے وہ ریسکیو بھی ان کو کنفرم کر رہا ہے. اور جیسے یہ اطلاعات پولیس تک پہنچی ہیں تو پولیس کی بھاری نفری جو ہے وہ ان کے رہائش گاہ پر پہنچ چکی ہے. یہ علاقہ بہت شکریہ آپ کا احمد. بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی. دیکھتے رہیے ARY نیوز.